نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ ایک غلطی نماز تہجد میں کرتے ہیں تو آپ کی نماز تہجد کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، پھر چاہے ساری زندگی پڑھتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج آپ کو وہ غلطی بتاؤں گی جو تہجد میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز تہجد اس غلطی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کون سی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اللہ والو، نماز تہجد ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی سب سے بڑی نیت کی خرابی ہے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے یا شہرت کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد اللہ کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص کی کمی نماز کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عبادات کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، اگر یہ مقصد ہی فوت ہو جائے تو عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، تہجد کی نماز کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تہجد کے مقررہ وقت سے ہٹ کر فجر کے قریب پڑھ لے تو وہ اصل تہجد شمار نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کی بھی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا کسی کا دل دکھاتا ہے، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی تہجد کی قبولیت کو روک سکتی ہے۔ جو شخص حرام ذریعے سے روزی کماتا ہے اس کی عبادات اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ دل کی سختی بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تہجد کے قبول نہ ہونے میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس کے دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو تہجد کی تاثیر زائل ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو نماز تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت میں ایک اہم شرط زبان کی پاکیزگی ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا فحش گفتگو کرتے ہیں، اللہ والو، ان کی عبادات کمزور ہو جاتی ہیں، ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کی نیت عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کو محض دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز ادا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کینہ، بغض اور حسد دل میں رکھتا ہے تو اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، اگر وہ صرف پاک دل والوں کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت کے لیے طہارت بڑا ضروری عمل ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر یا ناپاکی کی حالت میں نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ شیطان انسان کو مختلف ہیلے بہانوں میں ڈال کر اسے نماز تہجد ادا کرنے سے روکتا ہے، اسے تھپتھپاتا ہے کہ سوئے رہو، ابھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ جو شخص اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے اور سستی اختیار کر جاتا ہے وہ تہجد کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت کے لیے خشوع و خضوع ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بس رسمی طور پر جلدی نماز تہجد ادا کر لے تو اس کی روحانی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ رزق حلال نماز تہجد کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو شخص حلال روزی کماتا ہے اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بے حد اس کی دعائیں قبول و مقبول ہوتی ہیں۔
जिन लोगों की रातें गुनाहों में गुजरती हैं और फिर वो तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी ये इबादत नामुकम्मल हो जाती है, क्योंकि गुनाह नमाज की तासीर को कमज़ोर कर देते हैं। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त ना हो, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अकीदे की दुरुस्तगी हर इबादत की कबूलियत की पहली शर्त है। अल्लाह वालों, अपने अकीदे को मजबूत रखो। जो भी आपका अकीदा है आप उस पर डटे रहो, और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन, आपका तवक्कल मजबूत होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर, मौत पर, कब्र के अंधेरों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक तहज्जुद ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स गलत तरीके से नमाज अदा करता है तो वह इबादत कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुँच पाती, वो रास्ते में ही इधर उधर भटकती रहती है। अल्लाह वालों, अगर दिल में आजिज़ी ना हो, तहज्जुद बेअसर हो जाती है। अल्लाह ताला इन लोगों की दुआएं सुनता है जो आजिज़ व इनकसारी के साथ उसके हजूर झुकते हैं, गिड़गड़ाते हैं, गिरियाजारी करते हैं, अपने रब से कहते हैं कि तूने मुझे पैदा किया है, मुझे तुझ पर यकीन है, और इस बात पर तो कामिल यकीन है कि तू ही मुझे माफ़ करने वाला है, मेरे रास्तों की तमाम रुकावटों को दूर करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तू गफूर रहीम है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम भी है, तू मालिक यौमिद्दीन भी है। अल्लाह वालों, अगर कोई शख्स इस तरीके से अपने रब को पुकारता है तो मेरा रब बार बार फरमाता है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। जब आपको इस तरह महसूस हो कि आपका रब आपको बोल रहा है कि मेरे बंदे में हाजिर हूँ, तो समझ लें कि आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ चुका है। अगर कोई शख्स तहज्जुद के बाद अपनी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला रहा, गुनाहों को छोड़ नहीं रहा और अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं कर रहा, तो उसकी तहज्जुद महज एक रस्म बनकर रह जाती है। अल्लाह वालों, नमाज तहज्जुद में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम तहज्जुद को महज एक इबादत समझकर करते हैं और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर नहीं डालते। तहज्जुद का असल मकसद अल्लाह के करीब जाना और अपने किरदार को बेहतर बनाना है। नमाज तहज्जुद की फजीलत और उसकी कबूलियत के बारे में कई हदीसें मौजूद हैं, जिनसे मालूम होता है ये इबादत अल्लाह के करीब एक ख़ास ज़रिया है। इस तरह कुछ अमाल ऐसे हैं जो उसकी कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह वालों, आपको एक वाकया सुनाने लगी हूँ जो कि आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। एक माँ की फरियाद है और तहज्जुद की बरकत है कि तहज्जुद में कितनी ताकत है। रात के आखिरी पहर था, हर तरफ सन्नाटा था, परिंदे अपने घोंसलों में थे, शहर नींद में डूबा हुआ था, मगर एक छोटे से कमरे में एक बूढ़ी माँ जाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जाए नमाज पर बैठी अल्लाह के हजूर हाथ उठाए रो रही थी, या अल्लाह, मेरा बेटा खो गया है। ए अल्लाह, तू जानता है मैंने उसे तेरे रास्ते पे चलना सिखाया था, मगर वो दुनिया के फरेब में पड़ गया है, शैतान के बहकावे में आ गया है, नफ्स के बहकावे में आ गया है। या अल्लाह, तू कभी तहज्जुद के वक्त मेरे साथ उठता था, अब रातों को बाहर रहता है, गुनाहों में डूब गया है। ए मेरे मालिक मौला, तू उसे वापस बुला ले, मेरे रब उसे हदायत अता फरमा और सिराते मुस्तकीम पर चला दे। माँ की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी, उसके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे, मगर उसके अल्फाज सिर्फ एक ही सिमट जा रहे थे, अर्श के दरबार में। उधर वो बेटा जो माँ की दुआओं को भूल चुका था, किसी गलत महफिल में बैठा हुआ था। अचानक उसके दिल में एक अजीब बेचैनी आई, तबीयत में एक अजीब बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है। अजीब तड़प गया वो, जैसे किसी के आंसू उसके दिल पर दस्तक दे रहे हों। अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई, वो रातें याद आ गईं जब वो उसके साथ तहज्जुद के लिए उठता था। उसे याद आया कि माँ हमेशा कहती थी, बेटा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ता। बेटे की आंखों में आंसू आ गए, वो महफिल से उठा, तेज तेज कदमों से घर की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो माँ को सजदे में पाया, आंखों से बहते आंसू, लरसते होंठ। वो लपक कर माँ के कदमों में गिर गया और सिसक कर बोला, माँ, अल्लाह ने तेरी दुआएं सुन ली हैं, माँ मैं वापिस आ गया हूँ। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा, आंसू साफ किए और आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ मेरे मालिक मौला, मैं जानती थी जो रात के अंधेरे में
तुझसे मांगे वो खाली नहीं लौटता। ये कहानी ना सिर्फ एक माँ की दुआ की ताकत को जाहिर करती है बल्कि तहज्जुद की बरक़ात का भी एक ज़िंदा सबूत है। अगर आप भी अपने प्यारों की हदायत चाहते हैं, अगर आप भी किसी आजमाइश में हैं, तो तहज्जुद में अपने रब को पुकारें, क्योंकि वो रात के आखिरी पहर खुद पूछता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है? कौन है जो मुझसे रिज़्क़े हलाल चाहता है? तो अल्लाह ताला के कुर्बत का ज़रिया है तहज्जुद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के क़याम को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेकुकार लोगों का तरीका है। ये अल्लाह के करीब करने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, बुराइयों से रोकने वाला अमल है। तिरमिज़ी की ये हदीस है। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की पिछले पहर की नमाज तहज्जुद है। रात के आखिरी पहर में दुआओं की कबूलियत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात की आखिरी तहाई हिस्से में दुनिया पर, आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कहता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शूँ? कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ? कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसे बख्श दूँ, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ? कोई है हलाल रिज़्क मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज़्क अता करूँ? अल्लाह वालो, वो गलतियाँ जो तहज्जुद की कबूलियत में रुकावट बनती हैं, रियाकारी, दिखावा इबादत को ज़ाया कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स का फैसला किया जाएगा वो शख्स होगा जो शहीद हुआ। उसे अल्लाह के सामने लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा, वो उन्हें पहचान लेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, तुमने क्या किया? वो कहेगा, मैंने तेरे रास्ते में जहाद किया। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में जहाद किया और शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये इसलिए किया था कि ताकि तुम्हें बहादुर कहें लोग, और लोगों ने कह दिया। फिर उसे घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस में एक इबादत गुजार, एक सखी और एक आलम के बारे में भी यही बात कही गई कि अगर उनका अमल दिखावे के लिए था तो वो बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। अल्लाह वाला, मुस्लिम बुखारी की ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स लंबा सफ़र करता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी ग़ज़ा हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? सही मुस्लिम की हदीस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को नाहक कत्ल किया होगा और किसी को मारा होगा। फिर उसके हकूक़ अदा करने के लिए उसकी नेकियां ली जाएंगी। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से नमाजी ऐसे हैं जो अपनी नमाज से कुछ नहीं पाते सिवाय थकन के। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी को आग